Gratitude is my attitude. Gratitude is the fuel of my life. एक बड़ी प्यारी सेंटेंस होती है, wherever your focus goes, energy flows. मैं हमेशा कहती हूँ कि you should know both dimensions. बिल्कुल. पर आप दोनों को अपने देखो, हमारे पास दिमाग जो हमें मिला है ना, दिमाग का इकलौता जो एक काम है जो हमें करना है वो है चॉइस. This decade is for children to dream big and make those dreams come true. Today, we are talking about how, when children believe in themselves and work hard, wonderful things happen. It's like planting a tiny seed with care, love, and time, and it grows into a tall, strong tree. This decade belongs to every child who dares to dream, believe, and shine. Namaste dosto, welcome to Choti Kalam Bade Sapne, where we believe that even the smallest pen can write the biggest dreams. And I'm your host Chavi Mehta, and today we are diving deep into two magical powers. That is gratitude and manifestation. These power can make your life happier. Now most people start exploring these ideas when they're grown ups. पर ऐसा क्यों है? हम 20s में, 30s में, later in life, we try and figure out what's gratitude, what is manifestation. How about when we bring these concepts early in our children's life? I think magic is going to happen. And you got it right. We're going to create some magic here. We're going to decode how we can bring these small, beautiful concepts in our children's life so that they also become happier. So we have a very special guest for today, Ashmin Munjal ma'am. Thank you very much. Welcome to the show. Honored to be here. Honored to be in such a wonderful platform where the seats are being seated right now, and the viewers are someone who are here to accomplish a beautiful stardom for themselves. So thank you very much for having me here. Thank you so very much, ma'am, for accepting this and being here with us and igniting so many young minds. So yes, so a little about ma'am. Ma'am runs, she's a founder of Shukrana Gratitude, and I don't know कि किसी को नहीं पता होगा इस organization के बारे में. So ma'am, that will be an easier thing because जैसे आपने अभी बोला कि एक बीज से शुरुआत होती है कमाल के, आगे बढ़ते बढ़ते एक पौधे की, एक फल की, एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी की. तो in the same lineage I started my career as a cosmetologist around 29 years back, and whatever I achieved in my life I started from zero. And zero means I had no background, and I started from zero, rather a minus. And whatever I achieved in my life is out of the beautiful universal laws of manifestations, law of attraction, gratitude. हाँ, तब मुझे इनके नाम नहीं पता थे. तब मुझे कुछ कहावतों में या कुछ किसी की सीख से समझ आया था. But later on in the due course of life, I got to know they are the universal laws. And if you follow it, everyone can see fruits out of it. हर किसी के लिए same काम करते हैं. So a beautiful life, beautiful journey of working with best of celebs, best of clients, best of family, best of everything. Like life has been really heaven. Some people say किस्मत है. मैं कहती हूँ हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है. आप दोबारा रिपीट कीजिए क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी किस्मत को क्रिप करते हैं, कर्स करते हैं, शायद मेरी किस्मत ऐसे. शायद उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है. And I always say that because I have tasted both of the worlds myself. तो हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और किस्मत को बदकिस्मत भी खुद बनाता है, और अपनी किस्मत को खुशकिस्मत भी वो खुद ही बनाता है. तो किस्मत इन itself is we will talk further होती क्या चीज़ है और आपको कैसे बनानी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा पाओ जो आप पाना चाहते हो. Is it a destiny? Yes, past is just destiny. Obviously, it's coming with you, but your future is in your hands. Wow, we would love to know more about this magic wand, जिससे हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं. So आइए दोस्तों, let's dive in deep into what exactly is gratitude. So मैम थोड़ा सा बताइए, हमारी ऑडियंस है छोटे बच्चे. आई वर्क वेरी क्लोजली विद स्मॉल चिल्ड्रन, और मुझे लगता है कि आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड. शायद जिस लेवल पे मैं आज हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल पीपल लाइक यू सपोर्टिंग अस. इट इज़ अगेन गिव एंड टेक, बट इट कम्स बैक द मोर यू थैंकफुल फॉर. पर ये छोटी सी फिलॉसफी, जो इतनी सुंदर सी फिलॉसफी है, अगर हम छोटे नन्हे बच्चों को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे उनको? व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड?
I think the young kids actually learn from either the parents or from the school environment, from their buddies or peer around. But the whole thing is, if there is something in the schools or in the families as a practice, so they're very open to receive, because kids are always open to receive. Only thing is, what are we giving them? Absolutely. So because they are very open and receptive, I always say that in our sessions, kids who are learning with us in the beautiful practice of the magic book, they start from age of 4. Normally age of, because they come with their parent for sure, they're not joining themselves, but their parent are practicing, and same way they join on Zoom or YouTube live, and parents actually make sure like the video is on at home. जैसे घर में कोई शिनचैन चलने की बजाय या कोई कार्टून नेटवर्क चलने की बजाय ये जो YouTube पे शुक्राना की वीडियोस होती हैं, तो कुछ सेशंस वी कीप ओनली फॉर किड्स, बट वी नेवर से कि अच्छा थैंक यू बोलना सीख लो, ये करना सीख लो, ऐसे करना. नो, वी ऑलवेज फॉलो अ बुक कॉल्ड द मैजिक. इट्स नेवर लाइक कि हम कोई मोरालिटी के वे में सिखा रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ है इसलिए कर लो. सो in a way, none of us is a moral police, not even a parent or a grandparent. Like, we all are here to learn by themselves and to make sure the environment is such कि बच्चा खुद सीख रहा है. तो पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो पहले खुद सीखो. But this is something every parent need to really take into their life. And if the environment at home, especially parents, if they are practicing, child will be learning themselves. मतलब उसको क्या बताने जा रहे हो, वो तो वही सीखेगा जो घर पे हो रहा है. और आप जितना मर्जी स्कूल में सिखा दो, घर ऐसे सेशंस में बता दो, पर घर में अगर पेरेंट्स ही उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर कंप्लेनिंग, इफ़ दे आर क्रिबिंग, इफ़ दे आर फाइटिंग, तो उस बच्चे का जो बीज आप बीज रहे हो, उस बीज को पनपने के लिए मिट्टी, वो जो खाद, वो जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को अपने ऊपर. बट एट द सेम टाइम, yes, there is a book called The Magic Book. And I think if you can learn in the sense, आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो. जैसे छोटे बच्चे 4-5 साल के पढ़ लेते हैं ठीक ठाक और समझ भी लेते हैं. इफ़ आई एम सेइंग समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज इट्स अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, एवरी लैंग्वेज. They are more than excited and more than prepared to practice. और बहुत मज़ा आता है उनको काम करने के लिए. As small as कि सुबह उठते ही the first thing to do is find out some good things in your life. Wow. जिसको हम कहते हैं count your blessings and then be grateful about it. बोल कर, लिख कर, as the chapter says. रात को सोते हुए, ये नहीं कि आपने टीवी देखा और आप सो गए. रात को सोने से पहले there's a beautiful practice called the magic rock. मतलब आपने पत्थर, धरती माता का कोई भी अंश लेना है, बिकॉज वी आर स्टेइंग ऑन प्लैनेट अर्थ. तो अर्थ का हमारे साथ बहुत लेना देना है. तो वी टीच देम हाउ टू फाइंड अ रॉक. और बच्चे बड़े एक्साइटेडली ढूंढते हैं छोटा सा पत्थर, प्यारा सा पत्थर, पार्क में किसी बेड कहीं पे भी ढूंढते हैं, पेबल्स को ढूंढते हैं. एंड देन व्हाट टू से टू दैट रॉक टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं, खाते हुए, पीते हुए, इवन एज स्मॉल एज कि आप किसी प्लांट को भी देख रहे हो तो प्लांट को क्यों थैंक यू बोलना है. एंड आई थिंक दे आर ब्यूटिफुल लर्नर्स एंड दे आर आई ऑलवेज से दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. दे आर द फ्यूचर. वेरी राइटली सेड. 2 बातें आपने बहुत प्यारी बताई हैं. सबसे पहले पेरेंट्स के लिए मैसेज है, मिरर यू. बच्चे आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं. और एज राइटली सेड बाय मैम, यस, अगर हम कंप्लेनिंग मोड में हैं, अगर हम क्रिबिंग मोड में हैं, अगर हम फाइटिंग मोड में हैं, तो एनर्जी वो सेम ही बच्चों के पास पहुंचेगी. सो लेट्स चेक आवरसेल्फ, लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग. आर वी फॉलोइंग दिस इन द राइट वे? क्या हम ग्रेटफुल हैं? क्या हम थैंकफुल हैं? क्या हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं? आई थिंक दे विल जस्ट डेफिनेटली फॉलो अस. ट्रू. And the second beautiful concept that you just said, yes, let's start our day with something very positive. I would say very grateful. Yes, very positive and grateful. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू कैसे कर सकते हो. सो समटाइम्स इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग टू एक्सप्लेन देम. बट अब लगता है कि थैंक यू, आज मौसम इतना अच्छा है, देयर इज नो रेन, हम सब टाइम से पहुंच गए, बस सिटिंग हियर. सो दिस, इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, आई थिंक इट्स गोना बी एन एंडलेस लिस्ट. See, if you just look at your routine life, you are going to washroom, thank you नलका है जिसमें से पानी आता है, थैंक यू पानी आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट यहाँ पर आपको किसी नदी में से जाकर पानी लाना या किसी कुएं में से खींच के पानी लाना. ये कुछ तो ऐसी जगहें होती हैं इसी दुनिया में जहाँ पानी है ही नहीं. आपके घर में जस्ट
आप टैप को आपने ओपन किया और पानी पानी आ रहा है उसके अंदर से. Absolutely, we have a reason to be grateful for. So you have eyes to be grateful for. जिससे आप इतने कुछ सुंदर चीजें देख सकते हो. अभी आप सुन रहे हो मेरी आवाज. Are you grateful for your ear? Absolutely. So this is how even you're wearing these reading glasses. So you're using a lot of stuff in your life which are giving you a lot of workability and benefits and so much easiness. But अभी वो है तो हम उसको taken for granted ले रहे हैं कि चलो ये तो है. But अगर ये ना हो तो, अगर आपके पास अभी रीडिंग क्लास ना हो तो, A day without glasses, I don't know, कुछ होगा कि नहीं होगा. Because then you will be like in a mess, or you may be complaining about अरे मेरे ग्लास टूट गए, मेरी आंखों को दिख नहीं रहा, ढंग से नहीं दिख रहा. अभी सब कुछ ठीक है तो उसके लिए, because there is a beautiful phrase in this book called if you're grateful for something you will be given more of it. Wow. And if you're not grateful or complaining about something, even what you have will be taken away. तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ को बढ़ाना चाहते हो मतलब यू वांट टू एक्सपेंड इट, यू वांट टू मैग्नीफाई इट, यू वांट टू रियली ग्रो इट, बी इट मनी, बी इट योर अचीवमेंट्स, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर हैप्पीनेस, एनीथिंग, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. वाओ. जितना है उसके लिए पहले ग्रेटफुल होगे तो ये यूनिवर्स आपको और देगा. Absolutely. Yeah. So I deal with small kids. So last week there was a child in my class and he said कि हम क्यों grateful हों किसी चीज़ के लिए. So I just quoted an example. Suppose आपको कोई गिफ्ट देता है और आप बोलते हो कि अच्छा नहीं है. वो सेकेंड टाइम आपको एक गिफ्ट देता है एंड यू जस्ट शो योर फेस, पसंद नहीं आया, दैट काइंड. क्या वो थर्ड टाइम आपको गिफ्ट देगा? आई थिंक इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं विद ग्रैटिट्यूड. सो यूनिवर्स इज ऑल्सो वॉचिंग, राइट? अगर आज हम थैंकफुल नहीं हैं, ग्रेटफुल नहीं हैं, तो शायद कल वो गिफ्ट हमारे पास नहीं पहुँचे. ट्रू. और धीरे धीरे कम होते होते माइनस में भी चले जाते. लोगों के जैसे पैसों की दुनिया में बहुत होता है, मनी की दुनिया में, कि अगर आपको 5,000 की ज़रूरत है बट जेब में सिर्फ 500 रुपये है, बट इफ़ यू आर ग्रेटफुल कि शुक्र है मेरे पास 500 रुपये है, एंड स्लोली यू विल से सम वेस्ट ओपनिंग इन योर लाइफ, सम चैनल्स ओपनिंग इन योर लाइफ, एंड स्लोली यू आर एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग. बट वही 500 रुपये अगर आप क्रिबिंग कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी. We always explain it's not like morality. You just understand in a logical way, in a scientific way rather. You go to internet, go to YouTube and understand everything in this universe is an energy. मतलब साइंस में जब हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, हम जब बात करते होते हैं तो एट द क्वांटम लेवल एवरीथिंग इज अ मॉलिक्यूल और एटम विच इज एन एनर्जी. सो एनर्जी इज ओनली ऑफ 2 types. क्या होती है मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बस 2 एनर्जीज हैं. इन्हीं 2 एनर्जीज से हर ये माइक जो बन रहा है, ये बुक बन रही है, ये कपड़े बन रहे हैं, कर्टन बन रहा है, चेयर बन रहा है, एवरीथिंग इज अ क्लस्टर ऑफ एनर्जी. एंड एनर्जी हैज़ इट्स ओन फॉर्मेशन इन ईदर पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे. बट अगर इंसान के ऊपर सिंपली अप्लाई करे, जैसे बच्चे समझना चाहें, तो यू आर अ क्लस्टर ऑफ एनर्जी, क्लस्टर ऑफ एटम्स, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा का पुंज, है ना. ऊर्जा का आप एक, यू आर बेसिकली, आपको दिख नहीं रहा बट आपके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको दिखता है कि कुछ हल्का स्पंदना करता रहा था. हर बच्चे को देखना चाहिए. स्कूल्स में माइक्रोस्कोप्स होते हैं तो वो पता चलता है एनर्जी इज देयर. और एनर्जी जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में भी चेक कर लेते हैं, बैटरी सेल्स भी होते हैं उसमें भी चेक करते हैं प्लस माइनस. तो अगर आप प्लस एनर्जी में हो, यानी आपके अंदर एनर्जी जो बन रही है, नॉर्मली बनती कैसे एनर्जी? कुछ आप सोचते हो, बोलते हो, फील करते हो, या कुछ हाथों पैरों से कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इन्हीं कुछ 2-4 तरह से आप अपनी एनर्जी बना रहे होते हैं मेजरली. और आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी बनाते चले जाते हो उसका एक तरह का इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में. जैसे कि आपने बोला, बच्चे ने बोला मुझे ग्रैटिट्यूड क्यों करना है, तो दे शुड नो द लॉजिकल रीज़न कि क्यों करना है. आप अगर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बनाते हो तो आपकी लाइफ में एक तरह के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू आर अ मैग्नेट. अब मैग्नेट में 2 ही तरह की चार्जिंग है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं, मेरी जो चाहते हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एक बच्चे का भी होगा कि मेरे को मम्मी ये ला के दे, या पापा मेरे को प्यार करें, या मुझे घुमाने ले जाएं, या जैसे मुझे टीवी देखने दें, या मेरे नंबर अच्छे आए, या मेरा एडमिशन अच्छा हो जाए. तो आपकी इच्छाएं मोटे मोटी 2 ही कैटेगरीज में होती हैं. होल ऑफ द जो आपके डिज़ायर्स हैं, या तो वांटेड, जो आप चाहते हो कि आपको मिले, आपको आपके साथ हो, या आप बनो, जो भी यू वांटेड जिसको बोल रहे हैं, या अनवांटेड.
दो ही था। अब बोलोगे अनवांटेड वाली इच्छा, जो नाइटमेयर्स जो होते हैं उसको अनवांटेड कहते हैं ना। Okay. आपके सपने भी तो कुछ अच्छे सपने होते हैं, कुछ बुरे सपने होते हैं। बिल्कुल। अच्छे सपने को हम ड्रीम्स बोलते हैं और जो बुरे सपनों को नाइटमेयर्स बोलते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर वांट्स जो हमारी हैं, डिजायर्स हैं, जो हमारे विजन्स भी होते हैं। हम बनना चाहते हैं डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर डिजायर एज अ करियर। और आप क्या नहीं बनना चाहते, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, because as per your question, this thing has to be clear with the kids. We are not talking about any morality or good thing, और आप अच्छे बच्चे बन जाओ, या ये अच्छी काम होती है, ये अच्छे आपके संस्कार होते हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। मैं हमेशा कहती हूँ टॉक लॉजिकल, कि क्यों करना है। यहाँ अंधविश्वास कोई नहीं है, किसी भी चीज़ को इसलिए फॉलो मत करो कि आंटी बोल रही हैं या मम्मी बोल रही हैं, टीचर बोल रही हैं। आस्क व्हाई, and if you are really a person with a logical mind, you will really find an answer for it, कि इसका साइंटिफिकली लॉजिकली आंसर क्या है, क्योंकि हर चीज़ का है एज पर माई ऑब्जर्वेशन। तो आपने जब अपने डिज़ायर बनाया, आपने कुछ बना, तो आप जिस प्लैनेट पे इस समय रहते हो, प्लैनेट अर्थ, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी, द्विआयामी जिसको हम बोलते हैं। हर चीज़ के दो आयाम है यहाँ पर, डबल डायमेंशन। अगर हाथ का ये पार्ट है तो ये पार्ट फ्री में साथ में आएगा ही आएगा, यू कांट एस्केप इट। तो हर चीज़ के डबल डायमेंशन है। तो आप अगर सुख मांग रहे हो तो सुख है तो दुख भी है, अमीरी है तो गरीबी है, अगर आप नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, दिन है तो रात है, ज्ञान है तो अज्ञान है, हर चीज़ की डबल डायमेंशन है। द मोमेंट यू से आई वॉन्ट दिस, ऑब्वियसली डोंट वॉन्ट दिस। एब्सोल्युटली। तो अगर आपने बोला मुझे अमीर बनना है तो आपको गरीब नहीं बनना है। अगर आपको लगे मुझे पास होना है तो आपको फेल नहीं होना है। तो आपने जैसी किसी वांट की इच्छा क्रिएट करी, अनवांटेड तो अपने आप बन गई ना, साथ में बन गई। तो अनवांटेड और वांटेड के बीच में आपकी ज़िंदगी झूल रही है इस समय। तो ज़्यादा हमारी एनर्जी वांटेड में जानी चाहिए। आपने पहले नंबर एक समझो कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी आप ही क्रिएट कर रहे हो। जैसे एक माँ बोलती है कि बच्चे को कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो आपने दोनों तो मैनिफेस्ट कर दिए ना, पढ़ भी ले और फेल भी हो जाए। आप हर समय जो बोल रहे हो या सोच रहे हो, आप देखो, आप पॉजिटिव नेगेटिव, अरे जल्दी चलाओ गाड़ी नहीं तो हम कहीं लेट ना हो जाए, हम ऐसे बोलते तो बिल्कुल। तो हमने दोनों तो बोल दिया कि हम लेट नहीं होना चाहते। ये क्या है, हमारा अनवांटेड वाला ड्रीम है, पर वो साथ में ही आ गया। हम ठीक टाइम पे पहुंचे, हमारा वांटेड ड्रीम है। तो आप सारी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा पाना चाह रहे हो जो आप पाना चाह रहे हो, पर उसका जो अनचाहा है वो भी आप पैरेलली क्रिएट करते चले रहे हो। एंड नाउ दोनों ही इस यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज की दुनिया में तैयार बैठे हैं। दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। व्हाट विल कम इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी नाउ? आपके सामने प्रकट कौन होगा? जिसको आप ऊर्जा दोगे, जिसको आप एनर्जी दोगे। एक बड़ी प्यारी सेंटेंस होती है, wherever your focus goes, energy flows. वाओ। तो अब आप जिस चीज को फोकस या अटेंशन देने वाले हो, आपकी एनर्जी सारी उस तरफ फ्लो होने वाली है। एब्सोल्युटली। अगर हम जीत के बारे में सोचेंगे तो हम उसके बहुत करीब आ जाएंगे, और हार के बारे में सोचेंगे तो एनर्जी जहाँ जाएगी वही होगा। तो आप अब आपके ऊपर आप किस चीज को सोच रहे हो, बोल रहे हो। या इतना इजी है ये सब कुछ करना? आई थिंक द यूनिवर्स इज वेरी सिंपल, पीपल हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। एब्सोल्युटली। मतलब हार और जीत में इतना सा डिफरेंस है, जहाँ हमारी एनर्जी जाएगी और वही मिलेगा हमें। अब आप जब बोलते हो सिंपल, अब अगर मैं बोलूँ कि अब आप जितनी ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाओगे, आप उतना अपने मन चाहे तक पहुंचते चले जाओगे, मन चाहे को अट्रैक्ट करोगे एज अ मैग्नेट। जितने आप अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी बनाओगे, उतना आप अपने अनचाहे को अट्रैक्ट करोगे, वहाँ अनचाहे को तक पहुंचोगे। तो आपके ड्रीम्स और आपके नाइटमेयर्स दोनों आप ही बना रहे हो ना। जैसे मैं बोलती हूँ, लोग सिंपल होते, फिर ठीक है हम पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं अपनी। इतना आसान नहीं होता ना। देखिए आप सड़क पे चल रहे हैं, साथ में खड्डा है, हाँ, और एक यहाँ पहाड़ है जिस पे चढ़ना है, आपको ऊंचाई की तरफ चढ़ना है। हमारे ड्रीम्स हमेशा ऊंचाई की तरफ होते हैं। आज अगर मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ और मैं 1 लाख कमाना चाहती हूँ, तो 1 लाख रुपये मेरे लिए ऊंचाई है ना। खड्डे में गिरना तो आसान होता है, खड्डे में क्या करना है, गिर जाओ, है ना। तो नीचे नेगेटिविटी सोचना, जैसे कि नेगेटिविटी किसे कहते हैं, चिंता करना, इरिटेशन होना, तो ह्यूमन नेचर है। आसान चीज बहुत। कंप्लेंट करना कितना आसान है। कंप्लेंट करना, डरना, चिंता करना, जलन करना, जिसमें जो नेगेटिव वैल्यू। आई थिंक अगर हम ये बच्चों को समझाना चाहें तो क्या हम इसको माइंडसेट बोल सकते हैं? जो मर्जी बोल सकते हैं। एटीट्यूड, माइंडसेट, जो मर्जी बोल सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी को समझें और अच्छी ही चाहें कि हमारी लाइफ में आए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यू शुड नो बोथ डायमेंशंस। बिल्कुल। पर आप दोनों को अपने देखो, हमारे पास दिमाग जो हमें मिला है ना, दिमाग का इकलौता जो एक काम है जो हमें करना है वो है चॉइस। वंस यू नो, कंसिडर बोथ डायरेक्शंस, कंसिडर बोथ एटीट्यूड्स, कंसिडर बोथ माइंडसेट्स जो आपने बोला। एंड वंस यू नो बोथ माइंडसेट्स, इट्स फंक्शनिंग
its impact in your life. Now choose one. Absolutely. बहुत beautiful बात है, choice. So yesterday I was watching something on Instagram and that said decide. So once you decide and you write it down, you pen it down, then it's registered. You do it with that intention, do it with a focus, and where the energy lies, it happens, which is so beautiful. See, once you, very beautifully you said that, but if you are deciding it by your own self, then it's good. But if someone else is deciding for you, I think that's very important. I miss that. Actually, because खुद sometime decide करना. ना, So decide, when you decide it, the message goes into the universe. you want me to touch this topic? Do that, please help us. I would love to know this your humanity perspective. is rotten right now Okay. because you are into decidings. And the moment you say decide, I have decided it, maybe आपने किसी ने बोल दिया, आपने decide कर लिया, या आपने decide कर लिया, you are not left with any opportunity to dwell further because it's decided. Okay. Normally we are passing decisions to each other. Decide मतलब मेरे को पता है decide कैसे सुनाई देता है? Suicide. Achha, so there is a big difference between decide pesticide, and suicide. और आपने word use करा था choose. The moment you say decide, you have nothing to grow further. You have nothing to dwell further. You have nothing to bloom further. Because either you have decided for yourself or someone else has decided for yourself. Now there is nothing, कुछ बचा ही नहीं ना आगे, अब क्या करना है? This is so beautiful. शायद इस नज़र से इस वर्ड को कभी सोचा ही नहीं और देखा मुझे ही ना नहीं. decide It सुनते is ही so pesticide सुनाई beautiful. देता है. You know, sometimes kids talk about suicide, for example, because you have decided कि मुझे यही चाहिए था, यही बनना था, यही करना था, जो भी था. और आपको लगता है अगर वो चीज़ नहीं हुई तो जिंदगी ओवर है, आपके लिए ओवर है. I say make a choice. The moment आप खुद बोल के देखो, I decide, I make a choice. The moment you make a ज़्यादा choice, options है when you make a choice. you feel like breathing. The moment you say, okay, I'm making a choice to be a doctor, I'm making a choice to be an engineer, you feel like कि हो अभी सांसें चल रही हैं मेरी, डिसाइड करते ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ बैरियर डल गया है और खत्म हो गई है यहाँ पे चीज. Wow, बहुत अच्छा, बहुत beautifully आपने explain करा and eye opener for me also because decide And और at the choice same में time, in the confusion world था. of manifestation, when we say you choose, but just you choose commerce, you choose science, you choose whatever, but make sure you are choosing it so that you are open and receptive to the further ways. And once you're choosing something, be considerate about it. Go further. And once you're very clear what you want to do, be committed. I think that is very important. Say, बोल के देखो ना. Everybody has to understand this commitment is really important. Yeah, and commitment में you give your best. You give your 100%. And at the same time, you're a human. Absolutely. Always Very well remember said. you are a human. And the only thing you can, जैसे ना बहुत प्यारा एक श्लोक है गीता, भागवत गीता का, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर. एंड फल की चिंता ना करने का मतलब क्या, ये नहीं होता कि आप चिंता ना करो. मीन्स बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ. चिंता ना करने का उल्टा होता है ग्रैटिट्यूड करना, जब हम समझाते हैं बच्चों को कई बार. तो काम करना आपके हाथ में है. फल क्या चाहिए ये भी आप सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो. एंड नाउ लर्न द राइट फॉर्मूला टू रीच देयर. And this is what we actually train into the world of manifestation and gratitude. How to create really a life that you want to live. You can be a 3-year-old child or you can be a 90-year-old person. But still, you have full freedom, full rights and full opportunity to create a life that you really want to live. So यहाँ से सारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं करना कि किसी ने बोला तो करना है. बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द वन ऑफ द हाईएस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी. Wow. So that's why. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके. लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स. अमेजिंग. सो आई वाज रीडिंग समथिंग एंड इट जस्ट स्टक माय माइंड. इट सेड wherever and whenever there is gratitude, there is no room for unhappiness. Wherever and whenever there is gratitude, there is no room for anger. Wherever and whenever there is gratitude, there is no room for negativity. How true it is. क्योंकि because you can't be grateful and be angry at the same time. You can't be grateful and be negative at the same time. You can't be grateful and be unhappy at the same time. I think gratitude is the fuel. True. very truly. And it's same way, like अगर आप किसी भी मोमेंट पे जो आपके पास है, you are being grateful, thankful for that, being really in the जिसको हम कहते हैं कृतज्ञता का एहसास.
धन्यवाद या आप किसी भी तरह का आभार अगर उस एक्सपीरियंस में होते हो, तो आप एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे होते हो, एक कंटेंटमेंट के लेवल पे होते हैं. देन ऑब्वियसली वट एवर यू हैव यू आर ग्रेटफुल. Then there's no space. You cannot be grateful and complaining at the same time. Because and that's how the more and more you are in practice of being. देखिए, it's not like कि तुम thank you बोलो. बोलना is one degree of being in gratitude. जब आप सोच के बोलते हो कि मैं जैसे आपको बोलूँ कि थैंक यू वेरी मच छवि, ठीक है मैंने बोलने के लिए बोल दिया थैंक यू, पर मैं बोलूँ कि अब थैंक यू छवि फॉर हैविंग मी हेयर एंड क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन विच कैन इम्पैक्ट लॉट ऑफ चिल्ड्रन, लॉट ऑफ लाइव्स आउट देयर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर. तो मैंने एटलीस्ट सोचा तो सही ना, मैं क्यों थैंकफुल आपके लिए. तो इसको कहते हैं दिमाग को इस्तेमाल करना इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड. एंड देन हेयर कम, जैसे बोलना मैं अपने स्टूडेंट्स को जब सिखाती हूँ तो सिर्फ बोलने के लिए थैंक यू बोल रहे हो बुरी बात नहीं है, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आपने शुरुआत करी तो ये जैसे वो कॉइन्स नहीं होते हैं, जैसे 1-1 रुपए का कॉइन आता है, तो मैं कहती हूँ एवरी टाइम यू से थैंक यू फील लाइक कि तुमने 1 रुपए की कमाई करी है. इट्स ओके, अर्न इट. उसका क्या करना है वो हम आगे बात करेंगे, ये कमाइयाँ कहाँ यूज होती हैं. अगर आपने किसी को सोच कर दिमाग लगा कर बताया कि मैं आपके लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ विद अ रीजन, आपने चांदी का सिक्के की कमाई करी है. वो स्टील का सिक्का था, ये चांदी का सिक्का है. बट अगर आपने सच में दिल की गहराई से किसी के लिए आभार प्रकट किया, यू रियली फील इट एंड यू लेट द पर्सन नो व्हाई आर यू ग्रेटफुल विद ऑल योर फीलिंग्स, दैट्स लाइक अ सोने का सिक्का. वाओ. तो आपकी चॉइस है, आपने स्टील का सिक्का कमाना है, चांदी का कमाना है, सोने का कमाना है. एंड ऑल दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस. वाओ, आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको समझाया है कि चॉइस आपके पास है कि एक स्टील का कॉइन है, एक सिल्वर का कॉइन है और एक गोल्ड का कॉइन है. क्या अर्न करना चाहते हैं आप लोग? सो द चॉइस इज योर्स. I think we all should go for gold. yeah. And to reach the gold, sometimes you have to go really deeper. You know, सोने की खदान नीचे होती है काफी. तो you sometimes and in that way I feel कि जो ये book है मैजिक बुक, कई बार 28 दिन की it's असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिस, और हर रोज आप धीरे धीरे डीपर जाना शुरू करते हो. रेगुलर होनी चाहिए. अगर आप रेगुलर करते हो तो ही रिजल्ट आते हैं लाइफ के अंदर. एंड व्हाट डू यू वांट मेनली, द क्वेश्चन इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम्स कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई लिखाई में. अगर हम इसे रिलेट करें छोटे बच्चों के साथ, सो समटाइम्स दे डोंट नो कि उन्हें चाहिए क्या, तो उनको कैसे गाइड करें? आई थिंक सबसे क्लियरली उनको पता है कि उनको क्या चाहिए. क्योंकि सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में उन्हें बहुत क्लियर है कि क्या चाहिए. आई थिंक इन द वर्ल्ड ऑफ आई हैव बीन विद द एल्डरलीज एज वेल एंड विद द चिल्ड्रन एज वेल. आई थिंक दे आर, जो उन्हें उस समय चाहिए तो उन्हें चाहिए, उनको ऐसे चाहिए होता है. दिस इज कॉल्ड द शिद्दत, जो आपने बोला ना, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर होते हो, मुझे चाहिए, क्लियर एंड प्रिसाइज, मुझे ये चाहिए. मतलब कभी उनको मॉल में देखा है आपने शॉप्स के आगे बच्चे कैसे कर रहे होते हैं, मतलब दे नो हाउ टू गेट इट. वो वाली बात है. नाउ द थिंग इज, अभी तक मम्मी पापा से निकलवाना सीखा है, अब लेट्स लर्न हाउ टू टेक इट फ्रॉम द यूनिवर्स एज वेल. एंड इट्स नॉट लाइक अभी ये आपकी पूरी जिंदगी आपको एक फॉर्मूला काम आता है. तो फर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड, वेयर वी एक्चुअली बिलीव इन मैजिक्स, कि सब कुछ पॉसिबल है, जो आप पाना चाहो पॉसिबल है. बट बिफोर वी बिगिन आवर जर्नी, द होल थिंग इज यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, प्रोवाइडेड इट्स योर रियल नीड, नॉट योर ग्रीड. अब बच्चे यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करें? वही तो मैं शुरू करूँगी ना. पहले समझ लो कि अगर आप कुछ किसी की ज़रूरत है और आपको बहुत सच में ज़रूरत है उस चीज़ की, तो पक्का मिलेगा. अगर आपको सिर्फ इसलिए चाहिए कि बहन के पास है, भाई के पास है, फ्रेंड के पास है, यू नो, इट्स ए कंपैरिजन एंड अ ग्रीड, या मेरे को और चाहिए, तो यूनिवर्स, आपकी मम्मी पापा भी तो ऐसे ही करते हैं ना. कभी आप पापा मम्मी से मांग के देखो, उन्हें आपने बोला कि चीज पैसे चाहिए या कुछ भी आपको कोई सामान चाहिए, और उनको दिखता है कि हाँ, अगर आईफोन मांगा फॉर एग्जांपल, तो आईफोन क्यों चाहिए? अभी तो मेरे पास सपोज नोकिया है, तो आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर जूम बहुत क्लियरली खुलता है, वो मैम जो सिखाती हैं उसके वो प्रोजेक्ट भेजेंगी, मुझे प्रिंट आउट करना है. यू नो, यू हैव अ रीज़न फॉर इट कि क्यों चाहिए. इसी पे हम आगे बात करेंगे कि इवन यू विल कम टू नो व्हाट इज़ योर नीड एंड व्हाट इज़ योर ग्रीड. इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है टू डिस्टिंग्विश. एंड वंस यूनिवर्स नो इट्स योर नीड, तो चाहे वो आईफोन है, चाहे वो आईपैड है, चाहे जो भी चीज़ है, इट विल ग्रांट यू फॉर श्योर, क्योंकि वो आपकी नीड है. पर आपको इसलिए आईफोन चाहिए क्योंकि दोस्त के पास आईफोन है, और वैसे आपके पास फ़ोन है पर उसके पास है तो मुझे भी चाहिए. तो ये तो ग्रीड हो गई ना, कंपैरिजन हो गया. तो ये अब यूनिवर्स इसको ग्रांट करने के लिए वेला नहीं बैठा. तो यानी कि यूनिवर्स को रीजन चाहिए हमें क्यों चाहिए, और वो जेन्युइन रीजन लगेगा तो विल गेट इट. सी, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट. बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज अबाउट इट.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छुट्टियाँ चाहिए तो कहाँ जाना है, अगर आपको फ़ोन चाहिए तो कौन सा फ़ोन चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो कितने नंबर चाहिए, जो भी है ना। तो ऐसे करके आपको क्लियर है। घर में भी अगर आपका तो घर में मम्मी पापा के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए तो उस रिश्ते में क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पेशेंस चाहिए, इज्जत चाहिए, क्या चाहिए आपको, भरोसा चाहिए। तो बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर व्हाट यू वांट। वंस यू आर क्लियर व्हाट यू वांट, सेकेंड थिंग इज ये सब हम रिटर्न में कराते हैं, इट हैज़ टू बी इन रिटर्न। तो व्हाट यू वांट में तो बच्चे जो लिस्ट बनाना चाहें अपने, जो भी उनकी लिस्ट बनती हैं। सेकेंड थिंग इज वंस यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, पिक अप वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल आईफोन ले लो आप, आईफोन 16 चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू यू वांट इट? In the world of manifestations, these are set formulas. इसको follow करते करते आप आगे बढ़ोगे। तो now the person starts thinking कि क्यों चाहिए मुझको, बस चाहिए तो इसलिए चाहिए नहीं, कुछ तो बताओगे ना क्यों चाहिए, क्या करना है इसका आपने। तो पैसा भी चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर नंबर भी चाहिए तो क्यों चाहिए। मतलब मे बी यू से आई वांट दिस नंबर्स बिकॉज इससे मेरे मम्मी खुश हो जाएंगी, मेरे बहुत अच्छी रेपुटेशन बनेगी, मेरे को लोग समझदार समझेंगे, यू नो, यू मे से अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या ये जस्टिफाइड है, ये रीजंस ठीक है? I don't know, only you know the reasons rightly. Okay, so at least I need 10 reasons. Okay, wow. Because with every want in the world of manifestation, because only you know कि आप इस, और जब आप इसको डीपली सोचना शुरू करते हो कि मुझे क्यों चाहिए, that goes deeper into your subconscious. आपको पता तो चलना चाहिए ना आपको क्यों मांग रहे हो वो चीज़। तो इंसान को ना इस तरह से अपनी मांग, अपनी इच्छाओं के ऊपर भी एक कॉन्शियस एक्ट होना शुरू हो जाता है। So I'll share something very small here, and I'll be very honest with you. So I watched one of your podcasts with Dr. Amit Kumar. I'm a very big fan of him, and मेरा सबसे पहला podcast मैंने उन्हीं के साथ करा था। So I was just listening to your conversation, and it just clicked my head कि मुझे आपके साथ एक podcast करना चाहिए, and wherein we bring this beautiful message, this beautiful practice to the younger ones, बच्चों तक हमें पहुँचाएं। So I was just having a conversation with one of my very close friends, और मैंने बताया कि आज मैंने ये पॉडकास्ट देखा, इतना कुछ सीखने को मिला, और ऐसा कुछ अगर हम बच्चों के लिए करें तो कितना अमेजिंग होगा। मैं मैम को इनवाइट करूँगी। सो मेरी फ्रेंड ने पहला क्वेश्चन, व्हाई विल शी कम टू फॉर अ पॉडकास्ट विद यू? आई सेड व्हाई नॉट, एंड आई गिव अ 3 गुड रीजंस। आई सेड कितना ब्यूटीफुल मैसेज अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, शायद उनकी लाइफ की बहुत सारी हर्डल्स हट जाएं, शायद उनको बहुत क्लैरिटी मिल जाए, और शायद उनके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में इतना सपोर्ट मिल जाए। एंड बिलीव मी, इट डिड वर्क। इट डिड वर्क। आई थिंक आपकी टीम से इन जस्ट वन कॉल, वन मैसेज, आई गॉट अ कॉन्फर्मेशन। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, बट द होल आइडिया इज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. It works. Because if you are very clear why do you want it, if you are clear with your reason, universe is really here to support you. Really. Wonderful. And now I have the proof with me. you applied in any place in your life. In so any. My friend did question me 3 to 5 times. क्यों आएगा कोई आपके पास अगर आपको बात करनी है और ये मैसेज देना है, क्यों? Why will somebody? I said why not, and my why not was very strong. Next time you say why is very strong. I am a very strong believer. Negation words जितने भी होते हैं, no, never, don't, जितना हम कम यूज करें उतना अच्छा रहता है। आपने वर्ड्स की बात शुरू करी है, तो हम वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ वर्ड्स, और हम यहाँ पर एक मैसेज हम बच्चों को देंगे। मुझे लगता है व्हाट यू से बिकम्स योर वर्ल्ड. What you say becomes your world, because your words are magnets. आपके words सारे magnets हैं. If you speak love, love will come to you. If you speak fear, fear will find you. So whatever you say makes up your world. लेकिन हम तो ग्रोन अप्स हैं, हम समझते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, और टू क्वाइट एन एक्सटेंट, टू क्वाइट अ लिमिट हम वे करके बोलते हैं कि पॉजिटिव ही बोलना है, कोशिश करें नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करें। ये कॉन्सेप्ट हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएं? ऐसे सेम भी तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हमें क्यों लगता है बच्चे समझ नहीं रहे हैं। I never say, मैं अपने बच्चों को ना कभी भी वर्ड समझाना, बच्चे नहीं बोलती थी, मेरे भी 2 बच्चे थे। मतलब अब दोनों एडल्ट्स हैं, grown up and married. तो बट मैं ऑलवेज से यंग पीपल, they are not children, they are young people with young mind, young heart, young understanding, and very very fresh. Matlab, I have worked with a lot of children in my past, and I always, they are very smart and they understand. Obviously they have their own level of understanding. There is a beautiful saying called your words create your world. Absolutely. आपके शब्द आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं. तो choose your words very carefully, because
आप अगर कोई वर्ड आप बोलें, कोई वर्ड बोलें, कोई भी वर्ड बोलो, Happy? हैप्पी, तो मैं जैसे आपने हैप्पी बोला, मैं बोलूँगी हैप्पी की स्पेलिंग बताना, स्पेलिंग, HAPPY? स्पेल इट राइट, Spell it right. What does it mean? कैन यू हियर मी, स्पेल Yes. इट राइट, HAPPY. यू आर स्पेलिंग इट, Oh, spell it right, what's the spelling, खुश spell, रहना. Spell. It's a magic spell. so what's the meaning of spell, Spell is jadoo. every word has a spell. Wow. I think this is really profound. I've got goosebumps listening to this because I've never looked at words like with this angle, with this perception. It is actually magical. Yeah, every word has a spell, Wow. Every word has a spell. Beautiful. and we use it so often I by think saying the शायद spelling. अब I will never ever forget this. You should say I will always remember it. Oh yes, thank you for correcting me. I will always remember this. Yeah, always say what you want because every word coming out of your mouth is creating a spell because it has a spell. It has a spelling. And we all live in the spell of our own words. I know, बहुत 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 beautifully आपने समझाया, and it is just sounding like magic only. Yeah. So use the words that you really want to have in your life. Saying that there is a great, like all the deities and avatars and Pagambar, messengers, in some or the other way, they have been saying it already. Like there has been a wonderful, I would say, scholar named Guru Nanak Ji. And when he understood it, like everything is a word. You're living in the world of a word. Everything is casted and spelled by a word. So he actually started education which is based on only Shabad, if you understand. The Sikhism Bilkul. is all about Shabad. Shabad, right. Shabad means word. Everything is word. Wow. So now choose the word. The word you really want to create, that will be the foundation of your life further. So and when we say that, like even in the beautiful trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh, some people just want to impose or बस सुन लो, समझ लो और मानो इनको. They three are also saying the same thing. Absolutely. Brahma, Vishnu, Mahesh, but they are also saying the same I thing. think message सब direction से, सब religion से एक ही आता है. Yeah. And such a beautiful thing. Okay, if I am the creator of my life, if I'm using this word, I am the creator. Let's begin with Brahma, the creator. So I am the creator, I'm the sustainer, I'm the completer. If I say that, ikonkar, when you say that. So begin with creation. Na? So, okay, how to create? Whatever you are thinking in your mind, even that's being thinking in a word. आप बिना शब्द के कुछ सोच नहीं सकते अगर आपके पास शब्द दिन नहीं में है. कितने सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में. वो थॉट्स भी तो शब्दों में ही आ रहे हैं. बिल्कुल, आप कुछ आपके पास कोई लैंग्वेज है जिसके अंदर वो आ रहे हैं. एंड हैविंग दिस, सेइंग दिस, ओनली ह्यूमन, इंसान जो है, दैट्स द ओनली स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट हु कैन यूज वर्ड्स. द रेस्ट ऑफ एवरी स्पीशीज इज यूजिंग साउंड्स. Wow. So you are the only linguistic animal. This is so beautiful. And only you can be the creator of your life by using the words. तो words की दुनिया में welcome. Wow. अब हम बहुत positive words use करेंगे और every word has a spell. और आज तो मुझे बहुत amazing lesson सीखने को मिला है. And so grateful you've taught me this. This is my job as an ontologist. So I'm an ontologist by profession now. Wonderful. Working on the being of a human being. When you are saying mindset, we work on brain patterns and mindsets. But everything in your beliefs, in your sanskara, in your thoughts, in your memory is a word. Absolutely. If there's no और अब word. बहुत focus करेंगे playing with words. Yeah. Using them in the right way, the right selection of words. And I say not to be conscious about it. You can undergo a training about it. And I think the Magic Book is the best trainer. Starting from chapter 0 to chapter 28, everything that they are I saying. think it's a very beautiful, magical journey with this book, Magic. You be And with I read it for the first time during COVID. Huh. And from then, my life transformed to 360 degrees. So you read it or you did it? I did it both ways. I always ask, जब you कहते हो I ने read पढ़ी it, हुई है. I did it, and then I coached also a lot of people. Wonderful. That is great. Like because मेरा पहला क्वेश्चन है, पढ़ी वाली बात नहीं करी है. तो Because जब करी थी ना,
और जब किसी और को एक्सप्लेन करी तो शायद बेटर समझ आया. Wow. When I It's help always there. people understand it, I think मेरी अपनी understanding for the concept became really deeper. And the more you are doing it, like I must have read it or did it or guided it more than 100 or 200 Wow. times by now in the last few months and years of my life. And every time, even I'm about to start with next month again. I'm so excited after like hundreds of it. But every time I read it, every time I explain it, every time I do it for myself, something new opens up every day. You know, I always say it happens in my own light. जैसे हम कहते नहीं है, बुक्स के बारे में हम बोलते हैं कि इसको इस पब्लिकेशन हाउस ने प्रकाशित किया है. बुक्स हमेशा प्रकाशित होती हैं, पर बुक्स प्रकाशित होती हैं आपके प्रकाश में, आपकी लाइट में. तो आप कितनी लाइट में हो, अकॉर्डिंगली बुक अपीयर होगी आपके सामने. Wow. उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. आपने भी नोट किया होगा कभी जब आप ये बुक कर रहे होते हो. जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है, और उसको 2-3 बार पढ़ते हैं या सुनते हैं, आई थिंक यू गेट अ डीपर नॉलेज ऑफ इट. परसेप्शन भी चेंज हो जाता है कभी कभी. जैसे आज आपने बताया एवरी वर्ड हैज अ स्पेल. Yeah. सो स्पेलिंग तो पता था, बट द स्पेल वाज मैजिकल. Yeah. And the more you think about now It's not coming out of my head. yeah, this is how it's beautiful world. And I'm now like, so excited to talk about this to a lot of people around me. I say let's cast a spell now. Yes, let's like do what it. kind of spell you want to create, because वही है ना, अपने एक शब्द अपने आप में एक पॉसिबिलिटी है, बट आप उसको अपनी लाइफ में कैसे सच करते हो. यू वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, यू वांट टू बी अ इंजीनियर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट. So I'll share my It's a dream word. with you. I really want to create a community of happy children. So आज के टाइम में हम देखते हैं, despite having everything in life, बच्चे खुश नहीं हैं. So and that is the reason why we are here together. Yeah. So I've seen they're not satisfied despite having everything in life. So I want to build in a community of children. बहुत सारे बच्चे, national level पे एक campaign करना है where we talk about gratitude, where we talk about manifestation. और इसलिए हमने एक journal बनाया है. Wow. And for this, I've created this 3-minute gratitude journal for kids. Wonderful, So I really wonderful. want small little kids to come into this practice Yes. of penning down their thoughts, of penning down what are they grateful for. क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती. If you give something for them to write, yes, definitely they will write. True. And if you just open up the last page, how beautiful it is. the Everything last is page. already there in the it book. Says, you know, these positive words, हम words के बारे में बात कर रहे हैं, these affirmations, True. they are so beautiful, and the kind of message they give, it is just amazing. So we've created this workbook only for kids, for them to understand what exactly gratitude is. Yes. और छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें बताया कि 5 लोग मेरी लाइफ में कौन है जिनके लिए मुझे थैंकफुल होना चाहिए, जिनके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड है. और आप टू माई सरप्राइज बहुत सारे बच्चों ने अपनी मेड्स, अपने ड्राइवर्स, अपने स्कूल की टीचर्स, उनको भी मेंशन करा है. Wow. तो पहला तो सिर्फ ये होता है, you're just thinking about your family. But no, we are progressing. Every day, every time we are talking about it, we are progressing. अब और ज़्यादा लोगों के लिए gratitude होना शुरू हो गया. Then we've made a beautiful list, things you're grateful for. तो इनिशियली तो सिर्फ टॉयज होते हैं, टीवी होता है और गैजेट होता है, बट आई रियलाइज कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दे आर ग्रेटफुल फॉर. सो वन ऑफ द किड्स ही सेड, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई टीचर हु हैज़ गिवन मी दिस बुक. Wow. एंड दैट डे आई फेल्ट लाइक, यू नो, जो मेरा मिशन है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट देम टू अंडरस्टैंड. और जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात करें, एक कम्युनिटी बनाएं ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन. True. And when you sing happy, they say happy is what? Good feeling, I think. It has a spell. Happy, and to be happy, to be contented, to be really, really in a very, very grateful zone. Like only thing is how deeper you can go in the practice. And this book is such a wonderful practice zone. Like it's not जस्ट क्या बोल रहे हो या सोच रहे हो, आप सच में कर रहे हो, साथ बिल्कुल साथ कर रहे हैं, उनको कराते हैं और हर स्टेप में उनको I think सपोर्ट करते हैं. it should not be only for kids, it should be for adults as well. It can be because एक हमने ना बहुत ब्यूटीफुल इसमें प्रैक्टिस दी है, और मैं यहाँ पे चाहूँगी आप भी अपना इनपुट्स दीजिए. सो वी मेड अ मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड जार. हर बच्चे को हमने कहा एक ब्यूटीफुल सा जार रखो, अपना नाम लिखो, और यहाँ पर यू मेक अ फ्यू पिक्चर्स. छोटे बच्चे जो नहीं लिख पाते, हमने बोला सिर्फ आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें. डू यू थिंक दिस विल हेल्प देम?
I would say rather you make it a piggy bank. Oh wow. The gratitude piggy bank. Wonderful. मतलब I इसके think that's ऊपर a आपने wonderful जार के idea. ऊपर एक छोटा सा वो बनाओ जो डालने के लिए होता है एंड एवरी डे यू पुट अ पेपर ऑफ कि आज आप किसके लिए ग्रेटफुल हो एंड द मोर यू आर कलेक्टिंग द मोर द यूनिवर्स विल बी हैप्पी Absolutely, absolutely. and obviously they can decorate it with a lots of things they are grateful for by drawing by pasting they can make it even 3D you know once we have done it this with a vision board तो उसमें 3D में मतलब कि छोटे छोटे जैसे they have that car small है ना वो cars Oh, होती yes. हैं Wow. तो Okay. अगर आपके They घर can में कार paste है it, they can put it inside. हाँ, Wow, I think that's something they're like the they'll toy really enjoy. houses हाँ you can make a 3D gratitude jar for Wow. yourself तो चिपका भी सकते हो डाल भी सकते हो तो ये अंदर इनका ग्रेटिट्यूड जार भी बन सकता है और अगर हम पेस्ट करें तो शायद ये ही इन बच्चों के लिए विजन बोर्ड Yes, बन जाएगा. yes, आई वाज yes. कमिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली कि छोटे बच्चों को हम कैसे इंस्पायर और इनकरेज कर सकते हैं कि लेट्स हैव अ विजन बोर्ड. विल दे अंडरस्टैंड अ विजन बोर्ड? I think they are the most creative people. याद अपने मम्मी पापा को सिखाते हैं ये लोग तो. Oh, wow. Because I Super. think children have a beautiful imagination. मतलब they have rather expanded imagination. आप Yes, उनको you're इतना right. सोचने को बोलो इतना सोच लेते हैं. तो बहुत सुंदर imagination करते हैं जिस भी चीज़ को सोचना चाहते हैं because they are still saved by जिसको मैं कहती हूँ limiting blocks कहते हैं हम limiting beliefs हमारे कहते limiting हैं beliefs blocking होते हैं, हाँ. तो बिल्कुल. मतलब जैसे सब बड़े होते चले जाते हो आप दुनिया के दायरे के अंदर अपने आप को ब्लॉक करना शुरू कर देते हो बट चिल्ड्रन आर सो मैग्नामिसली मतलब बहुत एक्सपेंडेड होते हैं ये एंड जब आप विजन बोर्ड की बात कर रहे हो एक होता है विजन बोर्ड जो ड्रॉ करके बनाते हैं बिल्कुल. हम स्केच करके या क्राफ्ट करके I drew my first vision board when I was 40 years old. Don't ask my age now. But I learned it when I was 40. Yeah. तो मुझे लगा कि अगर 40 years में ये सोच के और एक विजन बोर्ड बना के and I'm telling you honestly मैंने आपकी भी वहाँ पर पिक्चर लगाई थी that I want to do a podcast with you और हर एक पे ग्रीन टिक आ गया है. वाओ So अगर ये मैजिक वॉन्ट अगर ये मैजिक अगर हम बच्चों को इस एज में सिखाएं तो आई थिंक दे कैन डू रियली ग्रेट इन yeah लाइफ. and देखिए there is a very beautiful term called be committed don't be attached. वाओ. This is something we always have to learn because I always say अगर जो आपने बनाया जो आप पाना चाहते हो वो तो obviously is good but maybe universe has something better for you. So something be bigger. committed. Don't be attached. Don't be attached. See, Okay. this planet has a misery. It has a legacy of misery due to attachments. Okay. People have sufferings because they're attached. Okay. I'm a little confused here. हाँ अटैच किसे कहते हैं जिसको मोह बोलते हैं किसी चीज से मोह हो जाए मोह अगर हो आप वैसे जाते, स्पिरिचुअल टर्म में सुनना चाहो तो मोह ममता आपको अटैच करती है आप किसी चीज के साथ अटक ही गए हो अटैच हो जाना अटक हो जाना कि मेरे कोई चीज अटक गए चाहिए एक होता है आई एम कमिटेड I'm to committed. receive it, to achieve it, to be there, and you try your best. You give your best. Obviously, commitment is a very beautiful term if you I understand. love this word commitment. और सबसे पहले हम शुरू करते हैं खुद से commitment, Yeah. खुद से promises, and whatever we've written on our vision board, let's be committed. Let's fight for it. Let's make it possible. Let's make it happen. True. And the beautiful affirmations you have given at the end, I would जैसा आपने बोला कि और कैसे हम इसको तो बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड किसको बनाना चाहिए I always say the best friend for you is your mirror. Wow. मतलब दुनिया जो मर्जी बोले मम्मी पापा जो मर्जी बोले but your best friend is your mirror. I think I love this concept. मतलब be with the mirror and not for only your makeup or hairstyle or looking good. Just be with the mirror, look into your eyes and just say thank you. Thank you for being my best friend. And this is a friend for the rest of your life. You know, you meet yourself in the mirror. And the person who need most of your gratitude is the person in the mirror. I think यहाँ पर हम ये चीज़ मिस करते हैं खुद के लिए तो ग्रेटिट्यूड नहीं हम करते नहीं आप मैं तो बट नहीं मैंने करती इसमें एक स्पेशल पेज बनाया है कि ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ Okay. 5 things you're grateful for. So एक बच्चे ने बोला I've got beautiful ears. हाँ. Imagine. So they've started understanding. You. I've got a cute nose. Yeah. I've got a big mouth to talk. Yeah. You But know, again, they're you are working understanding the on it. concept, Like yes. sometimes even at home, लोग अपने बच्चों को ही बोल देते हैं अरे तेरे नंबर कैसे हैं तेरी राइटिंग कैसी है रंग काला है सांवला है तू छोटा है तू मोटा है and you don't even know how much it can impact the esteem of a small child, the worthiness of a small child. And I always say
बच्चों को शुरू से बताना चाहिए दुनिया जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो शीशे में जाके बात करो अपने. एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग वी आर टीचिंग पीपल एंड यू आर सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म विद सच अ वंडरफुल विजन एंड अ ग्रेट वे टू कंट्रीब्यूट टू यंगस्टर्स इन द होल ऑफ ह्यूमैनिटी. तो आई थिंक जब आप एफर्मेशंस की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, कोई तो उसके साथ हमेशा होना चाहिए ना जो उसके साथ हमेशा है, एंड दैट्स द मिरर. दैट्स द मिरर. लवली. आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और मुझे लगा था कि मैजिक बुक मैंने इतनी बार पढ़ ली है शायद बहुत कुछ आता है. इसमें भी एक चैप्टर है ना मैजिक मिरर. Every time you have a conversation about this, there's so much more to learn. There is so much more to learn. Yes. Lovely. So जब छोटे बच्चों के साथ हम काम करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है. So I still remember last week we did a game. और गेम का नाम था थैंक यू हग. So every child has to go to a friend and give a hug, a thank you hug. So initially they were little reluctant, थोड़े hesitant थे, ये कैसा गेम होता है. But then they realized कि actually इस friend ने मुझे कहाँ help करी थी, किस तरीके से हम साथ में companions हैं, friends हैं, and in the end they had just a great feeling. Wow. So you know, again, being thankful for your friend also, it is so beautiful. So याद नहीं लास्ट टाइम हमने हमारी ऑडियंस ने थैंक यू हग कब करा था, एंड आई थिंक ये मैसेज है, ये टाइम है, गो एंड हग अ फ्रेंड एंड से जस्ट से थैंक यू फॉर बीइंग देयर. And if you really want to hug a friend who's always helping you out in some way, I always suggest go and hug a tree. वाओ. मतलब फ्रेंड वो जो हमेशा आपके आसपास होते हैं और जो हमेशा वो बहुत कुछ दे रहे हैं. आप बोलो क्या दे रहे हैं? बहुत कुछ. आपकी लॉन्ग लिस्ट है. सांसें ले रहे हो तुम इस समय, अगर सांसें ले रहे हो तो ऑक्सीजन जा रही है अंदर ना, तो वही दे रहा है आपको. मतलब इट्स दैट फ्रेंड इज डूइंग अ लॉट फॉर यू. एंड स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, लाइक देयर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू से कुछ ऐसा बोल दो कि जो गलत बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, उस समय आप क्या बोलते हो? जैसे मुंह से कुछ निकल गया गंदा बात, तो आप उससे बोलते हो टच वुड, है ना. मोस्टली पीपल से दैट टच वुड, तो आप फटाफट वुड को टच कर लेते हो. व्हाई? बिकॉज वुड एब्जॉर्ब्स योर नेगेटिव एनर्जी. वाओ. एक्चुअली वुड एब्जॉर्ब. आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में भी देखते हो, कभी करंट आ जाए, शॉर्ट सर्किट आ जाए, तो आप फटाक से वुड को यूज करते हो वहाँ पे भी, क्योंकि वुड एब्जॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जी. आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन. देयर इज सो मच टू लर्न और ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे बहुत देर तक. बट दिस इज वन थिंग, कभी भी आपको दुख हो रहा है, नेगेटिविटी, इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स बट फॉर एवरीवन. अगर आपको लगता है नेगेटिविटी बन रही है, कभी नेगेटिव ऑरा बन रहा है, कई बार लोग कहते हैं ईवल आई बन जाता है, नजर, बच्चों के लिए बोल देते हैं कई बार. मैं कहती हूँ कुछ नहीं करो, जस्ट गो एंड हग अ ट्री. इट विल. और पैरे उस समय चप्पल उतार देना, पैरे नंगे करना, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो अपने आप बैलेंस हो जाए, अपने आप अर्दिंग हो जाए. जो तुम्हें नहीं चाहिए, पेड़ को बोलो जो मुझे नहीं चाहिए मुझसे ले लेने के लिए शुक्रिया, और जो मुझे चाहिए मुझे वो दे देने के लिए शुक्रिया. अब बोलो उसको, देखो आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, वो दे रहा है. तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, पर फिर भी वो तुमसे ले रहा है क्योंकि उसको चाहिए. सो ऑलवेज फील एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ अ रीज़न. जो तुम्हें नहीं चाहिए, इट्स ओके, तुम उसको छोड़ दो. एंड जैसे आपने बोला फ्रेंड्स में जिसने कभी आपको ग्रैटिट्यूड किया, उसको जाकर थैंक यू बोलो, पर बाकी फ्रेंड्स भी अच्छे हैं. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. नाउ विल टॉक अबाउट मनी. बच्चों को ये बहुत जल्दी समझ आता है, द वैल्यू ऑफ मनी. सो टेल अस अ वेरी स्मॉल हैबिट वेर इन दे हैव गुड रिलेशनशिप विद मनी. बी ग्रेटफुल. बी ग्रेटफुल टू मनी. आप जब आप पैदा होते हो, छोटे होते हो, तो आप मोस्टली आप पैसे के, आपके पास पैसे आ ही रहे होते हैं. मतलब मम्मी ने आपको टॉफी ले दी, आइसक्रीम ले दी, स्कूल की फीस, बहुत सारे पैसे मिलते हैं. तो अगर आप चाहते हो, देखो आप कमा भी नहीं रहे हो, तब भी आपके पास सारे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं, है ना, एज अ चाइल्ड. अगर आप पूरी जिंदगी चाहते हो कि आप मजे करो और यूनिवर्स आपको टेक केयर करे, तो आपको सिंपल काम करना है. द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, मोर विल बी गिवन टू यू. तो आपने देखना है कि आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, ताया नाना नानी जो भी आप पे खर्चे कर रहे हैं, देखो पैसे तो वो लगा रहे हैं, बिल्कुल मजे आप ले रहे हो. वाह. तो आपको ढूंढ कर कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई दादू जिनके घर में हम रहते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई बुआ जिन्होंने मेरे को राखी पे इतना अच्छा गिफ्ट दिया. यू नो, इवन अ चॉकलेट गिवन टू यू हैज सम मनी अमाउंट रिलेटेड. हर चीज़ तो पैसों से ही आती है ना. आपने नहीं पैसे करे, पर किसी और ने तो खर्चे हैं. तो आपको बस थैंक यू करना है दिल से, सोच के. आप किसी के बर्थडे पार्टी पे गए, आपने वहाँ पिज़्ज़ा खाया, बेशक आप बोल सकते हो मैंने गिफ्ट भी तो दिया ना. अरे बाबा, वो जो दिया उसकी बात अभी मत करो, पर आप पे पिज़्ज़ा खाने का खर्चा तो हुआ है ना. बी थैंकफुल फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेंड और देयर ममा कि उन्होंने मेरे को पिज़्ज़ा खिलाया, उसके लिए शुक्रिया, उसके पैसे देने के लिए शुक्रिया. किसी शादी में खाना खाना जाते हो तो भी वो कोई तो खर्चा कर रहा है. इवन आप कभी बीमार पड़े, आपको कोई
डॉक्टर पे ले गया, किसी ने तो खर्चा किया है ना, बिल्कुल। दवाई खाई तो खर्चा होता है, जूते पहने तो खर्चा होता है, स्कूल की पिकनिक पे गए, स्कूल में फीस के लिए, कॉपी के लिए, हर चीज़ के लिए खर्चा होता है. द मोर यू आर कॉन्शियस अबाउट कि देयर इज समवन जो खर्चा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पर मैं उसका मजा ले रहा हूँ. अगर आप पूरी जिंदगी ये प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो कि विदाउट इवन हैविंग एनी आयोटा ऑफ टेंशन और वरी और स्ट्रगल टू अर्न मनी, बट योर all expenses throughout your life are taken care by someone. आई थिंक ये तो एक मैजिक मंत्रा है और सब लोग प्लीज़ इसको स्टार्ट अप्लाइंग इन योर लाइफ. जस्ट लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव. लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द गिफ्ट वी हैव, ऑल द मनी वी गेट, वॉट एवर वेज. और एक्चुअली यू राइट, बिकॉज वो कहाँ से आते हैं कभी कभी तो हम सोचते भी नहीं है. मतलब कभी कभी क्या, हमेशा हमेशा. यू राइट. You know, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव इन माई लाइफ. मतलब इवन हमारी कंट्री तो, हम तो इतने ब्लेस्ड कंट्री में पैदा हुए हैं कि हमारी शादी का खर्चा भी कोई और कर रहा होता है. किसी और, कोई टेंट लगाने का, कैटरिंग का, हमारी शादी का खर्चा मे बी फादर और मदर और समवन. मतलब मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मोस्टली आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि मेरे पापा ने मेरे लिए शादी पे इतना अच्छा टेंट लगाया या बैंक्वेट बुक किया या खाना खिलाया. मेरी शादी है, खर्चा वो कर रहे हैं. We never think it like that ना, कि आपको बर्तन या टीवी या लहंगा या साड़ी गिफ्ट में मिला. Everything has money included into it. हर चीज़ पैसे से आती है. So the more we are thankful for, I am just thinking about my shadi now. yeah, and this is Wow. how we do deeper and deeper practices in our life. Like you know, आज हम सोचते हैं ग्रोसरीज कितनी महंगी, आम कितने महंगे, पर बचपन में आम खाए कि नहीं खाए तुमने? बहुत सारे. तो फिर काउंट भी नहीं करे थे तब. किसी ने तो तब पैसे लगाए हैं ना, अगर तभी ग्रेटिट्यूड किया होता, आज तुम्हारे को भर भर के मिल रहे होते. No, I'm really grateful. आम अभी भी बहुत सारे मिल रहे हैं Yeah. and मिलते रहे. Yeah. And that's what. But बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है मैम आपके साथ और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ों का रिविजन हो रहा है. शायद हम कभी कभी लाइफ में भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें. सो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस. मूविंग ऑन, एक नया थोड़ा सा फ्रिक्शन आ रहा है पेरेंट्स और किड्स में. आई थिंक सिचुएशंस डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, बच्चों की नीड्स और डिमांड्स भी डिफरेंट है. तो एक छोटा सा फ्रिक्शन आ जाता है, पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं मानते और बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते. तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का मैजिक कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि मुझे अपने रिश्ते को स्मूथ करना है? अगर पेरेंट नहीं बोलती, हमेशा मदर या फादर बोलती हूँ या बच्चा बोलती हूँ. अगर पेरेंट चाहता है बच्चे के साथ बहुत इजी, स्मूथ एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हो और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप हो, तो उसको कॉपी उठानी है ग्रेटिट्यूड करने के लिए. भाई जिसको चाहिए वही अपना काम करेगा ना. बट यू वांट में, आपको चाहिए तो आप करोगे अपना काम शुरू. आई ऑलवेज से मैनिफेस्टेशन इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ, जिसके हम अंदर मैनिफेस्टेशन ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं. एट द सेम टाइम कर्मों की दुनिया भी है, करना भी पड़ेगा. विशफुल थिंकिंग डजंट गिव यू रिजल्ट, यू हैव टू बी इन एक्शन एज वेल. सो दैट वे. और अगर बच्चे के लिए आप बात करते हो कि बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म दैट वी प्रैक्टिस एंड ट्रेन पीपल इनटू इज, फॉर एवरी ह्यूमन, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन लिसनिंग टू इट राइट नाउ, योर पावर हाउस इज योर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर. ओके. जैसे कि अगर मेरे पास मोबाइल है फॉर एग्जांपल, उसकी बैटरी डाउन हो रही है, तो मैं क्या करूँगी? उसकी लीड लगाकर उसको किसी सॉकेट में प्लग इन करूँगी. तो आपका सॉकेट कौन है जहाँ से आपको अपने आप को प्लग इन करना है, जहाँ से आपको बैटरी चार्ज होगी आपकी? दैट इज़ योर बायोलॉजिकल फादर. मदर मे चेंज लेटर ऑन समटाइम्स, बट जो बायोलॉजिकल ओरिजिनल वाला है, वो वाला आपका फादर, वो वाला आपके मदर. इस वेरी सिंपली सेइंग, जैसे कि एक गंगा जी होती है, तो गंगा आती कहाँ से है? सोर्स मतलब गंगोत्री. गंगा हमेशा गंगोत्री से निकल रही होती है ना. तो आप अगर गंगा में कुछ भी नीचे कूड़ा है, कचरा है, जो लाइफ में नेगेटिविटीज आ जाती हैं, कई बार डिसएम्पावरमेंट आ जाता है. हम कई बार, जैसे ऋषिकेश में है गंगा जी या आगे हरिद्वार में, हम वहाँ पे सफाइयाँ कर रहे होते हैं, बट द सोर्स इज गंगोत्री. तो आपको जब भी लाइफ में कभी भी लगे कि मैं डिसएम्पावर फील कर रहा हूँ, कॉपी उठाओ अपने फादर के और मदर के, 10 ग्रैटिट्यूड करने शुरू करो. It may be a tough task for you sometimes, but if you really want to grow to your dreams, to your visions, you have to connect yourself with your power. अब इसमें तो हम बहुत डीप प्रैक्टिसेस कराते हैं विद द लॉजिकल माइंडसेट, बट उसमें टाइम लगता है काफ़ी समझाने में. वी कैन कीप वन पॉडकास्ट ओनली ऑन द बायोलॉजिकल सोर्स पावर ऑफ ह्यूमंस. ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. और शायद ये बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं लाइफ में. ये जो पावर कनेक्शन है, ये तो
सो अब मैं सोच रही हूँ कि व्हेन वी टॉक टू अवर पेरेंट्स, सो आई डोंट हैव माय फादर, इज नो मोर, बट व्हेन आई टॉक टू माय मॉम, इट इज़ मोर लाइक अ थेरेपी. चाहे वो 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो, 2 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, तो जिसको बोलते हैं सुकून, जिसको बोलते हैं पीस, आई रियली गेट दैट. एंड नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि पावर हाउस तो वही है, मेरी चार्जिंग तो वहीं पर होनी है. हाँ, and at the same time, whether they're alive or not doesn't matter. You can always charge yourself. Oh, wow. And by charging yourself, you don't even need them, because the only thing is how you are using your mindset and your emotions by being grateful or positive about them. Because कई बार हमें लगता है उन्होंने किया ही क्या है. कई बच्चे ऐसे सोचते हैं आपने किया ही क्या है. For example, the more you're saying आपने किया ही क्या है, आप पूरी जिंदगी करते ही रह जाओगे और आपको खुद को लगेगा कि मैंने किया ही क्या है. Wow. You know, the experience you have with your father, whatever that experience is, it can be positive, it can be negative, कुछ भी. जैसे मैं भी आपसे बात करूँ तो आप अपना experience एक बार ढूंढ सकते हो. बहुत positive. I think I am what I am because of my dad. हाँ, तो what you feel with your father is an experience of equality. Absolutely. कि like he has been always supportive and equal. So whatever you have as an experience, अभी हम positive की बात कर रहे हैं, इसमें negative भी ढूंढ सकते हैं. Okay. कुछ ना कुछ निकल आता है. तो जो भी आपका experience अपने father के साथ है, you just check in your life. Be it your husband, be it your friend, be it your son, be it your neighbor, be it your driver, be it anyone, male person. कहीं ना कहीं आपको ये experience उनके साथ कभी ना कभी feel होगा कि he is supportive and he is really being equality and supportive to me. ये कैसे होता है? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना, पॉजिटिव भी वहाँ पे झलकेगा. और अगर उनके लिए कोई नेगेटिव बताओ पापा के लिए. बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत गुस्सा भी करते थे कभी कभी. हम कभी कभार गुस्सा हो जाते थे. तो आप देखो आपके हस्बैंड के लिए आपको एक्सपीरियंस, जो भी बेटे के लिए, कि वो गुस्सा हो जाता है. Because whatever you're holding on with your father, it will reflect in all the masculine energy in your life. Oh. Whatever you're holding on with your mother will reflect in all the feminine energies in your life. And this is a positive, negative both ways. और हम कहाँ सफाई कर रहे हैं, चलो हस्बैंड के साथ अपनी थेरेपी करा लेती हूँ, इनको गुस्सा ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा. So it is linked there. Yeah. Until my dad was there, my husband never had anger issues. Never ever. कभी गुस्सा करते ही नहीं थे. Oh, I think now I can relate. So the only thing is, the easiest way out is कॉपी पेन उठाओ. अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर जितने भी मैस्कुलिन है और फेमिनिन के साथ आपकी ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाए, अपनी मदर के लिए रोज़ 10 ग्रैटिट्यूड लिखो. बिकॉज योर एनर्जी टूवर्ड्स योर मॉम विल बी मोर पॉजिटिव. एंड द थिंग्स, आप हैरान हो जाओगे आपकी सास के साथ, बेटी के साथ, बॉस अगर लेडी है या कोई कुलीग लेडी है, उन सब के साथ चीज़ें पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी. Wow. अब दिस इज हाउ द गंगा जी इज कमिंग फ्रॉम गंगोत्री. यू नो, अगर ऊपर से कूड़ा आ रहा है. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एंड आई ओपनर, क्योंकि कभी नहीं सुना. एंड यस, नाउ वी गोना plug in the socket and recharge ourselves. Let's and reach really out to our plug in parents. Plug in tight. Absolutely. Noted. Yeah. Wonderful. So Ashmin ma'am, बहुत मज़ा आ रहा है आज की conversation में. There's so much to learn. There's so much to explain. There's so much to unlearn also, जो हमारे basic concepts थे. मेरा next question आपसे है कि how do you explain manifestation का positive action? What is the formula that you would like to give to the younger generation, to the kids? See, first of all, you need to really understand what is manifestation. Manifestation is about संकल्प. आप किस चीज़ को पाना चाहते हो और आपका संकल्प बहुत ज़्यादा मजबूत है. एक होता है कि मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं. एक होता है नहीं चाहिए एंड यू वांटेड विद शिद्दत, कि मतलब चाहिए, सच में चाहिए, अंदर से चाहिए, यू नो. एंड संकल्प को सिद्ध कर देना कि वो जो तुमने सच में मांगा था, चाहा था, वो तुमने सिद्ध कर दिया, उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी की दुनिया में तुमने प्रकट कर दिया. दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. एंड व्हेन व्हाटएवर यू थिंक, व्हाटएवर यू रियली कैन इमेजिन, यूनिवर्स ऑलरेडी हैज इट. You need to understand it. Universe already has ये it. समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था इनिशियली कि यूनिवर्स के पास ऑलरेडी है तो क्यों नहीं आया. I always say that nothing new under the sun. I always make it understand to my kids. Nothing new under the sun. तुम कुछ भी सोच लो, कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, nothing new under the sun. कभी ना कभी किसी न किसी टाइम में वो हो चुका है. तो यूनिवर्स के पास सब कुछ रेडीमेड पहले से तैयार है. Only thing is how you attract it. Okay. How you want a villa, you want a car, you want a job, you want money, you want fame, you want followers, you want name, everything. How you attract it. Now, manifestation actually enables you in that way. तो manifestation होता है संकल्प को सिद्ध कर देना.
दैट्स वेयर इट वर्क्स. तो फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से 7-step फॉर्मूला, ताकि ईजी रहे हमेशा कि हर बच्चों को समझाने के लिए. अगेन यूज एन एग्जाम्पल, जैसे एक ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जाम्पल होता है. Okay. आपने भी किया होगा. बिल्कुल. तो आपने कभी अमेजोन पे गए होंगे, तो आपने वहाँ पे सपोज एक जैकेट खरीदना है, तो आप वहाँ पे देखोगे कौन सा कलर है, कौन सा साइज है, कौन सा पैटर्न है, एंड यू चूज समथिंग. एंड आप कोई बॉक्सेस को टिक कर रहे होते हो. अगर बॉक्सेस टिक नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा. इज इट बिल्कुल सिंपल? तो वही बॉक्सेस हम बात करते हैं. आपने ऑर्डर प्लेस करना है यूनिवर्स में. ओके, यूनिवर्स में सब कुछ है, आपको ऑर्डर प्लेस करना है. तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर व्हाट यू वांट. यू नीड टू बी रियली प्रिसाइज एंड क्लियर कि व्हाट यू वांट. एज प्रिसाइज एज कि अगर जैकेट भी लेने जा रहे हो तो कौन सी वाली ब्रांड, कौन सा, जैसे फ़ोन लेने जा रहे हो तो फ़ोन दे दो, ऐसा नहीं होता. कौन सी ब्रांड, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर. कार लेने जा रहे हो तो कौन सा, जैसे बड़ी कार चाहिए, ऐसे थोड़ा ना होता है. कौन सी कार चाहिए बताओ ना, तुम बताओगे. यूनिवर्स ने कल को आपको जो दे दिया, फिर आपको लगा ये तो चाहिए ही नहीं थी. ये हो ही रही है, यही रहा है लोगों के साथ. पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति मिल गया, ये कैसा पति मिला है मुझको, ये तो नहीं चाहिए था. तो यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर बताना कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए. रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कैसे देते हो? आई लव गोइंग टू सबवे. दैट्स माय फेवरेट शॉप. हाँ. तो सबवे में जाते हैं ना, तो बहुत आई थिंक वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. सबवे में सबसे पहले हमें ब्रेड चूज करना है. ब्रेड चूज करोगे, आप उसकी सॉसेस चूज करोगे, आपने क्या इंक्लूड हो, वेजिटेबल में भी क्या डलवाना है, नहीं डलवाना. एग्जैक्टली, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. पूछते हैं विद सॉल्ट एंड पेपर, देन दे विल आस्क यू पैकेट और हैव इट हियर. ओह यस. तो द सेम वे यू हैव टू प्लेस ऑर्डर इन यूनिवर्स. लाइक एवरीथिंग वी नीड टू बी प्रिसाइज. अगर आपको जीवन साथी भी चाहिए तो उसकी नेचर कैसी चाहिए, उसकी हाइट कैसी चाहिए, करैक्टर कैसे चाहिए, उसकी फैमिली कैसी चाहिए, एटलीस्ट लिखो. आगे क्या मिलना है नहीं मिलना वो तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन एंड पावर पे डिपेंड करेगा. बट यू नीड टू बी, जैसे रेस्टोरेंट में आप ऐसे ऑर्डर देते हो ना कि एक बटर चिकन चाहिए, एक दाल मखनी चाहिए, 2 लच्छा परांठा, एक रायता, एक चावल. यू नो, यू आर वेरी क्लियर अबाउट. ये तो नहीं कहते ना जाके एक बहुत सारा खाना ले आओ या बहुत सारा पैसा दे दो मुझको. तो ऐसा थोड़ी ना होता है. यू नीड टू रियली प्रिसाइज. तो यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन के फील्ड में फर्स्ट थिंग इज यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, बट बी प्रिसाइज व्हाट यू वांट. सेकेंड स्टेप इज व्हाट यू वांट इट, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि जो आप मांग रहे हो वो आपकी सच में नीड है. अगर आप 10 पॉइंट लिख सकते हो किसी भी चीज़ के व्हाट यू वांट इट, देन इट्स यू नो यू हैव वर्कड ऑन इट. वो सच में आपको सच चाहिए. बट अगर आप 2-3 से ज़्यादा पॉइंट सोच ही नहीं पा रहे कि क्यों चाहिए, तो वो आपका कोई कंपैरिजन या ग्रीड पॉइंट हो सकता है. तो दैट्स वन वे ऑफ लिटमस पेपर टेस्ट, आई से ऑलवेज. वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, नाउ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अपने डिज़ायर को, अपने विश को जिंदा रखना इज़ द मेन थिंग. कई लोगों के सपने गुम जाते हैं, मर जाते हैं, डूब जाते हैं. बिल्कुल. और मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से कहती हूँ कि ड्रीम्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है. एवरी ड्रीम हैज़ एन एक्सपायरी डेट. इससे पहले वो एक्सपायर हो जाए, वर्क ऑन इट. बट व्हाई डू यू वांट इट टू बी एक्सपायर्ड? लेट मी गेट अ लाइफ. भूल जाते हैं लोग. वही तो गलती है. आउट ऑफ योर माइंड, आउट ऑफ योर, जैसे आउट ऑफ योर साइट, आउट ऑफ योर माइंड बोलते हैं. तो ये 5 स्टेप होते हैं अपने ड्रीम को डेली बेसिस के ऊपर. 10 से 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से, पर इसको जिंदा रखना है अपने ड्रीम को. जब तक आप जिंदा रख रहे हो, इसमें जिंदगी आने के चांसेस हैं. वाओ. आपका ड्रीम अभी से पॉसिबिलिटीज में, रियलिटी में लाना है. यू वांट टू मेक इट लाइव इन योर लाइफ, तो उसको अलाइव भी तो रखोगे ना. तो फॉर दैट रीज़न, जो भी, जैसे आपने बोला कि मेरे को एक आईफोन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आईफोन 16 सिल्वर कलर फॉर एग्जांपल. तो अब नाउ ऑन डेली बेसिस यू हैव टू फॉलो दिस 5 स्टेप्स इन ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज. अब ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज में क्यों करना मैं आगे बताती हूँ. जैसे कि आई एम थैंकफुल टू रिसीव आईफोन 16 सिल्वर फॉर एग्जांपल. इसको डेली बेसिस पे आपने लिखना है, वंस मिनिमम, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स. तो एक बार आपने लिखना है. नंबर 2, आपको इसको डेली बेसिस पे बोलना है. स्पीक इट. बोलना कहाँ है? शीशे के सामने. जब भी आप किसी वॉशरूम में जाते हो या किसी भी वे में आप किसी, ऐसा है ना, कई बार रिफ्लेक्शन दिख जाता है, तो एक बार मिनिमम बोलना है, मैक्सिमम एज मेनी टाइम्स. तो बोलना है. नंबर 3, सुनना है. आपने अपने डिज़ायर को ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज में अपने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करना है. फ़ोन पे रिकॉर्डिंग होती है, और आपने उस आवाज़ को सुनाना है अपने कानों को. आपका जो पावर है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस पावर, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकता है. तो आपने सुनना है, तो उसको कान में लगा के, अगर आपके पास एयरपॉड्स या आजकल तो वो होते हैं कान में, तो सुबह उठते ही सुन सकते हो, रात को सोने से पहले सुन सकते हो, दिन में जितनी बार भी आप. आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स कि इसको ना 4-5 बार बोलकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दो. प्राइवेट चैनल सभी के होते हैं, और वहाँ पे लूप पे चला दो. लूप पे तुम्हारे कान में यही बजता रहेगा. अब लोग कितनी देर? मैक्सिमम
जितना ज़्यादा सुनोगे उतना जल्दी ये आपके लिए सच होना शुरू हो जाएगा। तो इन अ ग्रेटफुल मैनर, तो आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है, अब देखना है। देखने के लिए विजन बोर्ड बनाना है। यू होल्डिंग ऑन अ आईफोन और जैसे भी जो आपको विजन बोर्ड बनाना है, तो एक फ़ोटो होनी चाहिए, अपनी स्टडी पे लगाओ, किचन पे लगाओ, बाथरूम में लगाओ, वेयर एवर यू कैन पेस्ट इट, और अपनी डीपी बना लो ताकि यू इट्स अलाइव इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इट्स वेरी And it इंपॉर्टेंट। gives you reminders also. या टू बी ग्रेटफुल। अच्छा, जब आप ये सब कर रहे होते हो ना, तो जो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो बहुत अंदर से इंस्पायर कर रहा होता है कि ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। एंड वंस यू मेक अ विजन बोर्ड, देन कम द फिफ्थ स्टेप, फाइनल, जिसको हम थंब रूल बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। Okay. विजुअलाइजेशन इज कल्पना करना, सोचना किसी बारे में, पर ऐसे नहीं कि मुझे कब मिलेगी, क्या मिलेगी। विजुअलाइजिंग एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, जिसको हम आस्क बिलीव रिसीव का फॉर्मूला बोलते हैं। जो आप आस्क कर रहे हो, बिलीव करो कि तुम्हें मिल चुका है, और आप कितना उसके लिए शुक्रगुजार हो, कितना उसके लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो। वाओ, आपको आईफोन 16 मिल गया सिल्वर कलर का, तो आप क्या क्या कर रहे होगे उस समय। जो तब करना है उसको अभी से विजुलाइज करो, बिकॉज फॉर्मूला क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Wonderful. आप इस समय जिस एनर्जी में हो, ये एनर्जी ही उस चीज़ को आप तक अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इस समय स्कैरसिटी माइंडसेट पे हो, मुझे तो मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्यों मिलेगा, तो अभी आप क्या हो, नेगेटिविटी में हो, तो अब आप कभी भी उसको ट्रैक, बिकॉज यू आर नॉट टैपिंग द राइट फ्रिक्वेंसी। तो उस फ्रिक्वेंसी को टैप करने के लिए जो चीज़ आप मांग रहे हो, फील करो ना, तो मिल चुकी है। बी ग्रेटफुल, बी सेलिब्रेटिव अबाउट इट। दैट्स द थिंग यू हैव टू बी इन द विजुअलाइजेशन। तो नॉर्मली हम विजुअलाइजेशन 8 मिनट की बोलते हैं, पर बच्चे छोटे हो तो 3 मिनट भी चलता है। जैसे आपने 3 मिनट की ये मेडिटेशन बनाई है, Gratitude. Every page takes 3 minutes. हाँ, तो ये 3 मिनट की जो अपने मेडिटेशन इसकी ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया है, ऐसे 3 मिनट्स की हर डिज़ायर के लिए आप एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो तो मैं अभी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप चाहो 3 मिनट का, बिकॉज मेडिटेशन इज ध्यान। मेडिटेशन मीन्स ध्यान। अब आप सांसों पे ध्यान लगवा रहे हो, बच्चे को क्या जरूरत है सांसों, पता ही नहीं सांसें क्या होती है। सांसें विल तो कम। कभी कभी ना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को एक्सप्लेन करना कि मेडिटेशन करना है तो कैसे करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान जिसको हम बोलते हैं। तो आपको ध्यान सांसों पे क्यों लगवानी है, ध्यान पैसों पे लगवाओ उसका, ध्यान ग्रीनरी पे लगवाओ, ध्यान नेचर पे लगवाओ, ध्यान रिश्तों पे लगवाओ। अगर आपने 3 मिनट एक्सरसाइज करवाई, 3 मिनट ग्रैटिट्यूड, तो वो 3 मिनट तक बच्चा ध्यान ही तो लगा रहा है, बिल्कुल, ढूंढने के लिए कि तो मेरे क्या फ्रेंड ने। मेडिटेशन है? ऑब्वियस। ओह वाओ। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मीन्स फोकस करना किसी चीज़ पर। लोगों को लगता है मेडिटेशन में हम सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है, किसी मंत्रा पे ध्यान लगाना है। तो हम जैसे कई बार हम थैंक यू मंत्रा करवाते हैं लोगों से, तो आपने 3 मिनट तक थैंक यू करना है, और हर बार थैंक यू के आगे बोलना है थैंक यू फॉर द एयर, थैंक यू फॉर द रोड, थैंक यू फॉर द मेट्रो। आपने 3 मिनट तक ढूंढनी है चीज़ें। तो इंसान इधर उधर भटकने की बजाय चीज़ें ढूंढ रहा होता है टू से थैंक यू। तो ये भी तो ध्यान ही हुआ ना। बिल्कुल। तो आप ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक ध्यान ही है, मेडिटेशन है। एंड देन यू कैन कैटेगराइज इट लाइक इन अ वे कि चलो अब 3 मिनट तक फ़ोन के ऊपर ध्यान लगाते हैं कि फ़ोन के लिए हम किस किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हम कार्स का ध्यान या ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान लगाते हैं, या पानी का ध्यान लगाते हैं, पानी से हम क्या क्या काम करते हैं। देन द चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग, यू नो 3 मिनट जब 8 मिनट तक की, आई एम ग्रेटफुल टू वाटर क्योंकि मैं इससे ब्रश करता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू वाटर बिकॉज मैं इससे नहाता हूँ, अपनी कार साफ करता हूँ, वगैरह वगैरह, घर में पोछे, बर्तन, झाड़ू, कितनी चीज़ें होती हैं, देयर सो मेनी थिंग्स। तो आपने ड्यूरिंग दैट टाइम स्पैन यू आर मेडिटेटिंग ऑन द ग्रैटिट्यूड ऑफ वाटर। वाओ। सो दिस इज हाउ आई थिंक, जैसे कहते हैं ना सांसों पे ध्यान, सांसों पे तो तुम तब ध्यान लगाओगे, पहले जो दिख रही हैं बाहर चीजें, इनके लिए तो पहले ध्यान लगा लो। बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ। सो आई रिमेम्बर, और अभी भी करती हूँ मैं, वंस इन अ वीक आई गो फॉर अ थैंक यू वॉक। सो वॉक करने के लिए जब शाम को जाती हूँ तो एवरी स्टेप आई टेक आई से थैंक यू फॉर समथिंग। हाँ, वंडरफुल। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। कभी नेगेटिव माइंड होता है ना, तो ये बहुत सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। इट रियली चेंजेस माय एनर्जी। इट्स लाइक अ क्विक मूड शिफ्टर, जिसको हम थैंक यू मैजिक स्टेप्स भी बोलते हैं, मैजिक स्टेप्स के नाम से। जब भी गुस्सा चढ़े, समझना है क्या करना चाहिए, आई ऑलवेज से गो फॉर अ वॉक एंड नॉट लाइक अ वॉक। ऑन एवरी स्टेप यू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरू में जब बड़ा हाई पावर गुस्सा होता है, थैंक यू बोलना भी ठीक है, पर धीरे धीरे स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर। The more you are shifting your energy towards the positive zone, the more you are saving on to wasting your energy in a negative zone. And I think वो वॉक करके मुझे रियलाइज हुआ,
इतना इजी है अपनी एनर्जी चेंज करना भी। मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ इसका। चैप्टर 18 है शायद, मैजिक फुटस्टेप्स, Wow. बहुत यूज़ करती हूँ मैं ये वाला एक्सरसाइज। बहुत ब्यूटीफुल है आज की कॉन्वर्सेशन। एंड इसके अंदर हमारा जो अभी हमने आपको 5 स्टेप बता दिए, वो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपके वो पूरा सो दैट माई जॉब इज डन। तो आपने क्यों चाहिए आपने डेली बेसिस पे उसको लिखा, बोला, सुना, देखा, विजुलाइज किया। अब ये हो गया, अगर आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए तो अमेजोन पे जैसे ऑर्डर प्लेस होता है यूनिवर्स में आपकी वाली डिज़ायर का ऑर्डर प्लेस हो रहा है। पर पता कैसे चलेगा ऑर्डर प्लेस हो गया? तो अमेजोन आपको दिखाता है ना, एडिट टू योर कार्ट, बिल्कुल कुछ बताता है। यूनिवर्स कैसे बताएगा कि आपको ऑर्डर मिल गया? वो आपको आपका वाला सपना अक्सर फ्लैश करना शुरू कर देगा। अच्छा, तभी वो रेड कार्स के बारे में सोचो तो रेड ही दिखती है। ये आपको फ्लैशेस होते हैं ना, फ्लैशेस तभी दिखे। जैसे आपने आईफोन 16 बोला सिल्वर, तो आपको किसी पोस्टर पे दिख जाएगा, या आपको किसी मूवी में, या किसी फ्रेंड के हाथ में, या किसी पासर बाई के हाथ में दिख जाएगा। तो अगर आपको दिखना शुरू हो गया है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज क्लियर, आपको ये चाहिए। यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, जब वो दिखना शुरू हो जाए तो आपको मन में आता है अरे हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे बस की नहीं है, हमारे पास मिल नहीं रहा। यू स्टार्ट बीइंग नेगेटिव अबाउट इट। दैट्स वेयर द बिगेस्ट पिटफॉल इज। द मोमेंट यू गेट दैट यूनिवर्स गॉट द ऑर्डर प्लेस्ड, अब उसको क्या करना है? अमेजोन ऐसे तो नहीं ऑर्डर दे देगा ना, क्या करना पड़ता है अमेजोन को? पैसे देने पड़ते हैं। पैसे दोगे तो ये ऑर्डर रिलीज होगा। तो द मोमेंट यू गेट दैट यू हैव टू पे नाउ। और यूनिवर्स की करेंसी क्या है? ग्रैटिट्यूड। Wow. So it is so easy to get whatever you want in life. Whatever you want, start grateful होना, इतना gratitude करना। gratitude में भी अभी बुक आपको सिखाती है past के gratitude करना, present के gratitude करना, future के, इसको हम कहते हैं dissectional, horizontal, vertical, मतलब कई तरह से एक ही चीज़ के gratitude आप कर सकते हो ना, जो अभी नहीं आपको समझ आएंगे जब तक अभी बुक प्रॉपरली 30 days के तक आप पूरा प्रैक्टिस ना करो तो। बट दिस इज़ हाउ द मोर यू आर कलेक्टिंग ग्रैटिट्यूड द मोर करेंसी यू हैव। शुरू में तो आप इकट्ठा कर रहे हो, पर मैं कहती हूँ लिस्ट बना दो एक बार पूरी ड्रीम्स की, अब साइड कर दो, डेली बेसिस बस एक बार नज़र मार लो ताकि वो जिंदा रहे तुम्हारी आंखों के सामने। अब पूरी एनर्जी लगा दो ग्रैटिट्यूड इकट्ठी करने में टोटल, क्योंकि पैसे अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो तुम्हें सोचना थोड़ा ना पड़ रहा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यू हैव मनी विद यू, तुम जस्ट गो एंड बाय वट एवर यू वॉन्ट टू बाय। तो फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। So once you are in that sense clear about what you want to manifest and you have gratitude, इसको ये सब कुछ कहाँ चल रहा है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी फीलिंग्स में, यहाँ चल रहा है। बाहर की दुनिया में जिसको हम कहते हैं बीइंग, डूइंग, हैविंग, ब्रह्मा विष्णु महेश की दुनिया है। हैविंग में इफ यू आर क्लियर आईफोन चाहिए, बीइंग में क्या हो? ग्रेटफुल, मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, ये अंदर चल रहा है आपकी जो बीइंग की दुनिया है, जो दिख नहीं रही पर है। डूइंग की दुनिया में क्या कर रहे हो? कर्मों की दुनिया में, जो विष्णु की दुनिया कहते हैं। यू नीड टू बी इन एक्शन फॉर 8 hours एवरी डे। ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कई लोग भूल जाते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग ये फॉलो ही नहीं करते हैं। उनको लगता है मैंने लिख लिया है, मैंने सोच लिया है, हर रोज मैं देख रहा हूँ, पर अभी कुछ एक्शन नहीं होता। विष्णु यहाँ पे क्या मतलब भाजी खाने आए? मतलब आप ब्रह्मा कर रहे हो, एक्शन इज वेरी यू हैव टू कम विद विष्णु एंड ब्रह्मा टुगेदर। कई लोगों का वैसे नॉर्मली विष्णु तो सब कर रहे हैं, कर्म कांड तो कर ही रहे हैं ना, कुछ लोगों को मोस्टली ब्रह्मा मिसिंग होता है। मतलब जो क्रिएटर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो सोचकर और फील करके बनती हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज का कॉन्वर्सेशन, और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों तक चलता रहे और ऐसे ही हम आपसे बातें करते रहें और सुनते रहें। बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आई हैव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। दिस इज माई बुक 7 True Tales of Triumph. Oh wow. It's an anthology. Wonderful. It's a story about 7 real people. Wow. 7 real people. They're the 7 real heroes. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। Yes. So these 7 girls, coincidentally इस बुक में सब गर्ल्स हैं, एंड हर एक बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम भूल जाते हैं कि एक नेवर गिव अप एटीट्यूड भी होता है। गिव अप करना तो बहुत ईजी है। तो हर बच्चे ने अपनी लाइफ की स्टोरीज में शेयर करी और बताया है कि ये प्रॉब्लम थी, बट हाउ डिड आई केम फॉरवर्ड। तो कनेक्टिंग कॉर्ड सभी स्टोरीज का एक ही है, नेवर गिव अप, फाइट बैक, बाउंस बैक, लेट्स शो अप, चिन अप। इफ सचिन कैन डू इट, अपनी सारी लाइफ की हर्डल से इतना बड़ा बैग उठा के वो सचिन बनाया आज, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी रिजेक्शंस इन लाइफ, हम क्यों नहीं बन सकते। तो बस यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि लेट्स कीप ऑन वर्किंग हार्ड, लेट्स हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लेट्स नेवर गिव अप। तो आप प्लीज जरूर पढ़िएगा इस बुक को। Yes, certainly, and I always say every human born on this planet is born to be a star. Wow. Born to be a hero.
एंड यू आर डेस्टिन्ड टू बी अ स्टार, द हीरो. ओनली थिंग इज अपनी किस्मत बनाना सीखो. अपनी किस्मत को पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और कैसे अपनी खुद के गुड लक को आगे बढ़ाते बैड लक से दूर रह सकते हो, क्योंकि दोनों हर टाइम पे बन रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं. एंड फाइंड आउट व्हाट यू रियली वांट टू बी इन एक्शन, बी इन द मैनिफेस्टेशन, एंड अर्न एज मैनी पॉइंट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एज यू कैन, बिकॉज दैट विल बी आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएंगे वो आपके लिए. सो नॉट बिकॉज इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट इट इज़ द थिंग टू डू. It is the thing to do, and it is so beautiful. So gratitude is my attitude. Gratitude is the fuel of my life, and आप लोग भी अपनाएं अपनी लाइफ में and see magic happening. And with this we end today's podcast. Yes, दोबारा करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे. We'll have this conversation because it is so amazing. It is just we are time pressed, but so amazing to listen to your wisdom, your guidance, your experience. So Ashmeen ma'am, thank you so very much for coming Thank up you here. very much. दिल से वाला gratitude, and it was really eye opener. आज का जो conversation है, बहुत सारे beautiful message हमें मिले हैं और हमारे viewers को. I hope everybody is going to enjoy. So with this note, thank you so much. Thank you ma'am. Thank you.